Good afternoon, students. Now, as we discussed lecture, in our previous lecture, we discussed regarding our first topic is set. Now, today, we discuss the set with some its operations, with some basic operations of a sets. So, as we discussed in our previous lecture, set. First, we discussed the definition of set. Set is a collection of well-defined objects. Well-defined objects, well-defined objects means objects are come to a set according to some rule. According to some rule is defined that all the elements come into a set. For example, we discussed the example of set of the ECE 5th class of LKCE. All you are the elements of that set because you are the part of ECE 5th class of Lalpur Khalsa College of Engineering. Now, students, after set, we discuss the some basics of that set theory. Firstly, we discuss after the set, we discuss what is the meaning of empty set. Then we discuss after after that the meaning of the set. Then we discuss the empty set, what is the meaning of subset, what is the meaning of universal set, and all that. So all these are our basics regarding the sets. Then we discuss the some properties and notations for a set. As we discussed, the notation for a set is always set is denoted by a capital letter. Capital letter is used to define a set. So what is the meaning of set? The meaning of a set is well-defined collection of objects, and set is always denoted by a capital letter. A set is a well-defined collection of objects. Let us suppose we have a set A. A is a set of all the letters in an English alphabet. Then the notation is always capital. You can use any notation. Here the notation is capital A. Capital A is A, B, C, D, E, F, up to so on. The last element is Z. So all these A, comma B, comma C, comma D, all these are the elements of the set. So after discuss regarding a set, in the previous lecture we discussed what is a roster form of set, or what is a set builder form of a set. In a roster form, we write the elements by using a comma notation, and in a set builder form we write the rule to how the elements come into that set. Now notation of epsilon, this notation of epsilon is used to indicate that the element belong to that particular set or not. This notation is used to check that the element is belong to a set or not. This notation is known as a belongs to. Belongs to notation is used to check the element belongs to a set, particular set or a not. Now, next we discuss, after that we already discussed regarding a empty set. Empty set is also known as a null set. Empty set is also known as a null set. Empty set means the set which has a no elements. The set which has a no element is known as a empty set, as we discussed in our previous lecture. So here I can write a one example of a null set. Let us suppose you have
you have the equation x square plus 1, and you want to define a set of a real number solution of this equation. Real number solution of this equation. Real number solution of this equation. If you can find the solution of this equation, students, the equation is x square plus 1 equals to 0. Your equation is x square plus 1 equals to 0. If you can find the solution of this equation, what is the solution of this equation? Write in the chat box. Be quick. बेटा जी लिखो जल्दी जल्दी से, इस इक्वेशन का आंसर क्या आएगा? व्हाट आर द रूट्स ऑफ x और व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? Solve and write in a chat box. What is the solution of this equation? X square plus 1. Not a plus 1 minus 1. Right, beta ji, be quick, solve. No, not a plus 1 minus 1, not a 1. Very good. Under root minus 1. 0 is not a solution of this equation, Diksha. This is a wrong. Students, solve this equation and find the answer. Under root minus 1. So, students, if we can solve this equation, x square plus 1 equals to 0. Then x square equals to minus 1. We can write x square equals to minus 1. And if we want to remove this x square, we take a under root on both sides. फर्स्ट बेटा जी 1 इस साइड क्या हो रहा है प्लस, तो दूसरी साइड जाके क्या होगा माइनस. एक्स स्क्वायर आप लोगों का क्या आएगा? यूर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1. आफ्टर फाइंडिंग एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1, देन टू रिमूव अ स्क्वायर you have to find a under root. Then if you can find the under root, x square equals to plus minus under root -1. Your x square equals to plus minus under root -1. And students, you know that under root -1 is equals to iota. We can use under root -1 is equals to iota. So our values of x are plus minus iota. We can find the two values. One value is plus iota and second value is minus iota. So plus iota and minus iota, we know that these two roots are complex roots because iota, the number which contains iota is known as a complex number. बेटा आपको याद होगा, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, the number which contains iota is known as a complex number. तो इस इक्वेशन के हम लोगों ने दो रूट फाइंड किए हैं. एक कौन सा है प्लस आयोटा और दूसरा कौन सा है माइनस आयोटा. क्योंकि इसके आपके पास दो रूट आए हैं प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा, कोई भी रियल नंबर नहीं है, तो फिर इस इक्वेशन का कोई रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता. अगर इस इक्वेशन का कोई रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, दैट मीन्स no real root exists. That means no number exists in this set. If no number exists in a set, then the set is known as a empty set or a null set. Null set कौन सा होता है? जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, that set is known as a null set or empty set. So next we discuss regarding a subset. We discussed in a previous lecture regarding a subset also. Students, let us suppose you have a two sets A and B. You have a two sets A and B. Then A is a subset of B, means every element of A is presented in a B. Each and every element of A is
presented in a B. So let us suppose, now let us, here I can write -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 up to so on. This is a subset of set of real numbers, because in a set of real numbers, we include integers, rational, irrational, all the numbers, and this is a set of integer. You can check that 0 is also a part of set of real number, 1 is also a part of set of real numbers, 2 is also a part of set of real number. Similarly, -1 is also a part of set of real number, -2 is also a part of set of real number, up to so on. So each and every element of this set is also a part of set of real numbers. क्योंकि बेटा जी सेट ऑफ रियल नंबर्स में आपके इंटीजर्स भी आते हैं, रैशनल नंबर भी आते हैं और इररेशनल नंबर भी होते हैं. सो आपका ये सेट क्या है? दिस इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. नाउ वी डिस्कस द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ अ सबसेट. A is a subset of B means if X belongs to A, अगर इस A का कोई एलिमेंट है, दैट इज X belongs to A, then X belongs to B. अगर कोई एलिमेंट X A को बिलोंग करता है तो वो B को भी बिलोंग करेगा. Each and every element of A is a part of B. So students, let us suppose we have our two sets. One is a set of natural number and second is a set of whole numbers. One is a set of natural numbers, second is a set of whole numbers. Then students, set of natural number is a subset of set of whole numbers, because whole numbers include one extra element, that is a 0. Now phi set, phi means null set. Null set is a subset of every set. Null set is a subset of every set, because if X belongs to phi, there is an element X is phi. That means no element is presented in a phi set. Then X is also element of A. X A में भी होगा क्योंकि X में phi में कोई element ही नहीं है. तो phi is always a subset of every set. Phi is always a subset of every set. That means null set is a subset of every set. Now next we discuss number of subset. As I can say in the previous lecture that if we have a 3 elements, then the number of subset is 2 raised to power 3. If we have a 4 elements, then the number of subset is 2 raised to power 4. In general, if we have n elements, then how many subsets are possible? Kindly beta ji write in the chat box, if we have n elements, then how many subsets are possible? How many subsets of the set are possible if we have the n elements? If we have a 3 elements, then the subset are 2 raised to power 3. If we have the 4, then 2 raised to power 4. If we have the 5 elements, then we have, then very good, then the number of subset is 2 raised to power n. If we have a n element, then the number of subset is 2 raised to power n. आप लोगों ने सबसेट कैसे लिखने हैं? फर्स्टली यू हैव टू चूज. आप लोग क्या चूज करोगे? फाइव, क्योंकि हर एक सेट का ऑलवेज सबसेट होता ही होता है. देन आफ्टर चूजिंग अ फाइव, आप लोग एक एक एलिमेंट चूज करोगे, उसके बाद दो एलिमेंट चूज करोगे, दो एलिमेंट्स की पेयरिंग चूज करोगे. उसके बाद अगर 3 एलिमेंट्स का सेट है तो 3 एलिमेंट चूज करोगे. सिमिलरली अगर आपका सेट कितने एलिमेंट है? उसमें 4 एलिमेंट्स. तो फर्स्ट बेटा आपका सबसेट क्या होगा? 5. उसके बाद आप एक एक एलिमेंट सेलेक्ट करोगे, उसके बाद दो एलिमेंट सेलेक्ट करोगे, फिर 3. लास्ट इज यूर सेट जिसमें कितने एलिमेंट होंगे? 4. लेट अस सपोज आप लोगों के पास ये सेट है ए, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है? बी, सी एंड डी.
आपके पास बेटा जी कोई सब सेट है, कौन सा, ए, जिसमें कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट बी, सी एंड डी। तो अब आप लोगों ने अगर इसका सबसेट लिखना है तो कैसे लिखोगे? फर्स्ट इसका सबसेट क्या होगा? 5, क्योंकि 5 ऑलवेज ही सबसेट होता है हर एक सेट का। उसके बाद बेटा जी अगर हम एक एक एलिमेंट देखें तो फर्स्ट सबसेट क्या आएगा? बी, उसके बाद क्या आएगा? सी, थर्ड हमारा फोर्थ क्या होगा? डी। पहला सबसेट 5, फिर बी, फिर सी, फिर डी। अब उसके बाद एक एक एलिमेंट हो गया। अब हम कितने कितने एलिमेंट चूज करेंगे? वी हैव टू चूज द 2 एलिमेंट्स। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा क्या आएगा? बी सी। सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? सी डी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? बी डी। तो 3 सबसेट यहां से आ गए। और नेक्स्ट हमारा क्या होगा? होल सेट ए। तो फर्स्ट आपका सबसेट क्या हो गया? 5। नेक्स्ट क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्या हो गया? डी। नेक्स्ट में बी सी, वो वाला सेट जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, बी सी। नेक्स्ट क्या हो गया जिसमें 2 एलिमेंट है? बी डी। नेक्स्ट क्या हो गया जिसमें 2 एलिमेंट है? सी डी। और नेक्स्ट आपका लास्ट जो सेट आपके पास है वो भी अपना सबसेट होगा ही होगा। बेटा जी जो आपके पास सेट है वो हमेशा ही खुद का सबसेट होगा ही होगा। सो नंबर ऑफ सबसेट किसके इक्वल होते हैं? 2n के इक्वल। Now, after discuss regarding a subset, next we discuss the set operation. ये बेटा जी थोड़े से बेसिक ऑपरेशंस हैं। बेसिकली ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस। ऑपरेशन जो हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अ यूनियन। दैट इज अ यूनियन। बेटा जी अगर आप किसी सेट को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं उसको? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम is representation of a set in terms of these circles or in terms of some diagrams. So here to find the union of two sets is a set of all the elements formed by combining all the elements of set A and all the elements of set B into a one set. अगर बेटा आपके पास 2 सेट हैं, एक सेट कौन सा है? ए, और दूसरा सेट कौन सा है? बी। आपने उन दोनों की क्या फाइंड करनी है? यूनियन। तो बेटा जी यूनियन कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग कंबाइन कर देंगे सेट ए एंड सेट बी। वी कंबाइन द सेट ए एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए एंड द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो आपके पास क्या फाइंड हो जाएगी? यूनियन। यूनियन फाइंड करने के लिए बेटा अगर आपके पास 2 सेट्स हैं ए एंड बी तो यूनियन कैसे आएगी? आप लोग दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखोगे। दैट इज योर यूनियन ए यूनियन बी। दैट इज योर यूनियन ए यूनियन बी। सो एज हियर ए यूनियन बी, ये हो गया आपका सेट ए और दूसरा कौन सा सेट है? बी। तो यूनियन में क्या होगा? जो आपके सेट ए में एलिमेंट है वो भी आएंगे और जो आपके सेट बी में एलिमेंट है वो भी आएंगे। लेट अस सपोज बेटा जी आपके पास 2 सेट्स हैं। अगर हम कंसीडर करेंगे, लेट अस सपोज आपके पास हैं 2 सेट्स। ए सेट में कितने एलिमेंट हैं? 1, 2 एंड 3। आपके पास ए सेट में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट्स, 1, 2 एंड 3। बी सेट में कितने एलिमेंट हैं? अगेन 3 एलिमेंट्स, 2, 3 एंड 4। तो बेटा जी ए यूनियन बी में आप लोग ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट्स को क्या करोगे? कंबाइन करके लिखोगे। तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा? फर्स्ट एलिमेंट इज 1 क्योंकि ए में प्रेजेंट है। 2 देन बेटा चेक करो योर नेक्स्ट एलिमेंट इज 2 बट 2 is presented in a set A as well as in a B. तो this
इस 2 को आप लोग 2 बार नहीं लिखोगे, सिर्फ एक बार लिखोगे, क्योंकि सेट में हम कभी भी रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखते। इस बी को सॉरी 2 को आपने सिर्फ सिंगल टाइम लिखना है, दैट इज द 2। नेक्स्ट 3 इज प्रेजेंटेड इन अ ए एज वेल एज इन अ बी, सो अवर नेक्स्ट एलिमेंट इज अ 3। 3 को भी 2 बार नहीं लिखना है, एक बार ही लिखना है। नाउ नेक्स्ट A is completed. Next, first element is added. Second element is also added in the set. So your third element is 4. 4 is also a part of union. तो यूनियन में आप लोगों ने क्या करना है बेटा जी, जो सेट ए के एलिमेंट हैं और सेट बी के एलिमेंट हैं, उन दोनों को क्या करना है, कंबाइन। अगर बेटा जी आप लोग कंबाइन करोगे, कंबाइन करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी, यूनियन। ये बेटा जी आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, यूनियन में कभी भी जो एलिमेंट 2 बार आ रहे हैं उनको सिर्फ सिंगल टाइम ही लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है। जैसे अगर इस सेट की मैं बात करूं, आप लोग ए यूनियन बी फाइंड कर रहे हो, तो आप क्या लिखो 1, 2, 2, 3, 3, 4। रिपीटेड एलिमेंट्स को आप लोगों ने सिर्फ एक बार ही लिखना है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज the union of rational numbers with the set of irrational number is a set of real numbers, because rational number हमारे पास कौन से होते हैं, rational numbers that can be expressed as a fraction, while irrational number कौन से होते हैं, जिनको हम fraction की फॉर्म में नहीं लिख सकते एग्जैक्टली। सो अगर बेटा जी आप रैशनल और इरेशनल को कंबाइन करोगे, उनकी यूनियन फाइंड करोगे, तो उनकी यूनियन आपके पास क्या आ जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स। यूनियन को बेटा जी डिनोट किसके साथ करोगे, दिस साइन ऑफ यू। अगर बेटा जी हम लोग इसकी एग्जाम्पल की डेफिनेशन की बात करें, ए यूनियन बी का मीनिंग क्या है, एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू अ सेट ए और टू अ सेट बी। जहाँ तो एलिमेंट बेटा जी किसको बिलोंग करे, सेट ए को, और जहाँ किसको बिलोंग करे, बी को। अगर दोनों को करता है तो कितनी बार लिखोगे, only one time. A union B includes that element X such that X belongs to A and X belongs to B. X A को belong करे और जहाँ किसको B belong करे, B को। Next is our properties of union. Next is the properties of union. First property is known as a identity law. First property is known as a identity law. अगर बेटा जी आपके पास कोई सेट क्या है, ए, आप ए सेट की यूनियन फाइंड करोगे विद अ 5। वी नो दैट 5 इज अ एम्प्टी सेट, देन ए यूनियन 5 किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल्स टू ए। तो इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। अगर बेटा लेट अस सपोज आपके पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल ए आपका सेट कौन सा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर बेटा जी आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एम्प्टी सेट ऐड करोगे तो कौन सा सेट रह जाएगा हमारे पास, अगेन वी ऑब्टेन द सेट ए। सो ए यूनियन 5 इज इक्वल्स टू ए। your A union phi, A union phi is equals to A. Now next, our next property is that A union U is universal set. We know that universal set is a set of सुपर सेट, दैट इज नोन एज अ सुपर सेट। जो सबसे बड़ा सेट है, बाकी सारे सेट उसके पार्ट्स हैं, उस सेट को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। सो ए यूनियन यू इज इक्वल्स टू यू। आप कोई सेट ए है, उसकी यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। इस लॉ को क्या बोलते हैं, डोमिनेशन लॉ। सो नेक्स्ट इज ए यूनियन ए।
अगर आप किसी ए सेट को उसके साथ ही यूनियन फाइंड करोगे तो आंसर भी वही सेट आएगा। इस लॉ को क्या बोलते हैं हम? एडेम्पोटेंट लॉ। एडेम्पोटेंट लॉ। लेट अस सपोज बेटा जी आप लोग एलिमेंट लिखो अपनी कॉपी पे 1 2 3 4। राइट डाउन द सेट ए इज 1 2 3 4। अब बेटा जी ए के साथ यूनियन फाइंड करो, ए और ए को कंबाइन करो, देखो कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। यू कैन अगेन गेट द सेम सेट ए, सो A union A is equals to A. That law is known as a idempotent law. That law is known as a idempotent law. Next is A union B. A union B equals to A union B equals to B union A. This is known as commutative law. A union B equals to B union A. This is known as a commutative law. अगर बेटा जी आप A सेट पहले लिखोगे, B बाद में लिखोगे, या B पहले लिखोगे, B पहले लिखोगे, A बाद में लिखोगे, आंसर क्या आएगा? सेम. Please students be on a time. 12:15 means 12:15. Now A union B equals to B union A, and this property is known as a commutative property. अगर आप A की B के साथ यूनियन फाइंड करोगे या B की A के साथ यूनियन फाइंड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? सेम. आप लोग दो सेट कंसीडर करना और ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करना एक बार. Now next we discuss, next is A union B union C is equals to A union B union C. फर्स्ट बेटा जी इसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट आप किसकी यूनियन फाइंड करोगे? B यूनियन C. जो आंसर आएगा उसकी आप यूनियन फाइंड करोगे विद द A. B यूनियन C फाइंड करके फिर हम किसके साथ यूनियन करेंगे? A के साथ. यूनियन का मीनिंग क्या है? कंबाइनिंग द एलिमेंट्स. और बेटा जी इस साइड पहले हम A यूनियन B करेंगे, फिर किसके साथ यूनियन करेंगे? विद द C. तो आपका आंसर क्या होगा? सेम. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज अ एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन. Now we discuss first law is identity law, second law is domination law, third is idempotent, commutative property and associative law. Now next we discuss the second operation is intersection of a sets. अगर आप लोगों ने दो सेट्स हैं आपके पास A and B, उसकी क्या फाइंड करनी है? इंटरसेक्शन. The intersection of set A and B is a set of elements that are common to both sets A and B. जो बेटा जी कॉमन एलिमेंट होंगे सेट A में भी होंगे सेट B में भी होंगे, वो कौन से? वो क्या है आपकी? इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B सेट. तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे? जो A में भी प्रेजेंट होंगे एज वेल एज दैट आर प्रेजेंटेड दैट आर इन अ सेट B. तो इंटरसेक्शन, फ्रॉम दिस डायग्राम यू कैन सी दैट, लेट अस सपोज बेटा जी ये आपका कौन सा सेट है? A, और सेकंड सेट कौन सा है आपका? B. अगर बेटा जी आप लोगों ने इसकी इंटरसेक्शन फाइंड करनी है तो इंटरसेक्शन में क्या होगा? आप लोग A सेट के एलिमेंट और B के जो कॉमन पोर्शन है, जो A में भी एग्जिस्ट करते हैं B में भी एग्जिस्ट करते हैं, वो क्या है? आपकी इंटरसेक्शन. So this shaded region represent a intersection of A and B. A and B intersection में कौन से एलिमेंट आएंगे? That are common to A and B. That are common to A and B. Let us suppose आपके पास बेटा जी दो सेट्स हैं. फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 and 3. एंड सेकेंड सेट में भी तीन एलिमेंट्स हैं 3 4 and 5. सेकेंड सेट में भी कितने एलिमेंट हैं? 3 4 and 5.
Now students, you can check that which elements are common. वो कौन सा एलिमेंट है या कौन से एलिमेंट हैं जो दोनों सेट्स में प्रेजेंटेड है? ओनली वी ऑब्टेन अ वन एलिमेंट। 3 फर्स्ट सेट में भी प्रेजेंट है और सेकंड में भी, तो 3 हमारा कौन सा सेट है? 3 कौन सा एलिमेंट है? 3 इज अ कॉमन एलिमेंट। सो 3 क्या होगी हमारी? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आएंगे? ओनली वन एलिमेंट 3, क्योंकि अगर 1 इस सेट में है तो 1 सेकंड सेट में भी नहीं, सेकंड सेट में नहीं है। 2 इस सेट में है बट 2 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। इस सेट में 4 प्रेजेंटेड है बट 4 यहाँ पे नहीं है। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। तो कॉमन कौन सा एलिमेंट है? दैट इज अ 3। तो 3 दोनों में प्रेजेंटेड है। इसका मीनिंग है इसकी इंटरसेक्शन में क्या आएगा? वी ऑब्टेन अ वन एलिमेंट दैट इज अ 3। नाउ ये दो सिटीज के नाम है, न्यूयॉर्क, विस्टिंगटन, और इसके आप इंटरसेक्शन फाइंड करो विद 3, 4। तो इनमें से क्या कॉमन आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। दैट मीन्स इंटरसेक्शन इज 5। इंटरसेक्शन इज 5। अब बेटा नेक्स्ट देखो, अगर हम लोग फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ 1, 2 विद 5 सेट। 5 सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? नो एलिमेंट इन अ 5 सेट। तो अगर उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमन एलिमेंट क्या आएगा? कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो इंटरसेक्शन हमारी क्या आएगी? 5, क्योंकि कोई भी एलिमेंट प्रेजेंटेड नहीं है तो फिर कॉमन कुछ नहीं आ सकता। तो इंटरसेक्शन क्या होगी हमारी? 5। नाउ अगेन अब हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। अगर बेटा जी आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है U और एक सेट है A की आप U के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? सेट A। क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सेट पावर सेट या यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जिसमें सारे ही सेट कवर हों, वो तो बिगर सेट है। A सेट क्या होगा? स्मॉलर। तो A और U में कॉमन क्या होगा? A सेट। नेक्स्ट, एक ही आप लोग 5 के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो आंसर क्या आएगा? 5, क्योंकि 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है, कुछ कॉमन ही नहीं आ सकता, तो इंटरसेक्शन क्या आएगी? 5। अगर बेटा जी आप ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे तो आंसर अगेन क्या आएगा? ए। आप ए इंटरसेक्शन ए फाइंड करोगे तो आपका आंसर भी क्या आएगा? ए। नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो जहां आप लोग बी इंटरसेक्शन ए करोगे वो दोनों आपस में क्या है? इक्वल। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ए बी इंटरसेक्शन इक्वल्स टू बी ए इंटरसेक्शन। नेक्स्ट इज A intersection B intersection C equals to A intersection B intersection C. This is associative law. First law is identity law. A intersection U is a universal set, is equals to A. A intersection phi equals to phi. Domination law. A intersection A intersection A, idempotent law. A intersection B is equals to B intersection A. This is commutative law. Next is A intersection B intersection C is equals to A intersection B intersection C. So after that, basics law, these are the some basic laws of the intersection. As we firstly we discuss the laws of a union, and now we discuss the laws of a intersection. Now next we discuss, after all that we discuss mutually exclusive set. We discussed this in a previous lecture. So two sets A and B are mutually exclusive. दो सेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं? अगर उनकी इंटरसेक्शन क्या हो? 5। अगर उनकी इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो दोनों सेट आपस में क्या होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट। और इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिसजॉइंट सेट्स।
Now, two sets are disjoint if their intersection is a empty set. अगर दो सेट्स की इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आ रहा, कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो वो सेट्स दोनों क्या होंगे? डिसजॉइंट. Now if we see this example 1 2 3 and 3 4 5, इनकी इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? कॉमन एलिमेंट दोनों में कौन सा है? 3. सो दीज टू सेट्स आर नॉट अ डिसजॉइंट सेट्स. तो इन दोनों सेट्स को आप लोग नहीं बोल सकते कि ये दो डिसजॉइंट सेट है. नेक्स्ट एग्जांपल, दो सिटीज के नेम है और एलिमेंट है आपके पास 3 4. इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों सेट्स क्या होंगे? डिसजॉइंट सेट्स, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. नेक्स्ट इज 1 2 एंड 5. 1 2 और 5 की इंटरसेक्शन हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस की थी. 1 2 इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएगा? 5. कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो अगेन these two sets are disjoint sets. Now this is example of a disjoint set. Let us suppose आपके पास दो sets हैं, दो you have the two sets, one first is a set A and second is a set B, and these two sets यूनिवर्सल सेट को बेटा जी आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हो? यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल, एंड जितने भी सेट्स होंगे दैट आर द पार्ट्स ऑफ दैट यूनिवर्सल सेट. जैसे यहाँ पे यूनिवर्सल सेट आपका किसके साथ रिप्रेजेंट हो रहा है? विद हेल्प ऑफ दिस रेक्टेंगल. दिस इज योर सेट A एंड दिस इज योर सेट B. As you can see from the diagram that no element is common in A and B set. A and B set में कुछ भी common नहीं आ रहा. That means कि these two sets are disjoint sets. अगर A and B set दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, क्योंकि डायग्राम में भी आप लोग चेक कर सकते हो इनका कोई भी पोर्शन ओवरलैप नहीं कर रहा, तो दोनों सेट्स क्या है? डिसजॉइंट सेट्स. नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन सेट्स. डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स. लेट अस सपोज बेटा जी आपके पास दो सेट्स हैं A and B. Let us suppose you have the two sets A and B. आप लोगों ने क्या फाइंड करना है? You have to find A minus B. A minus B क्या है? A minus B, difference between A and B set. तो इसमें कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? That belongs to a set A but that are not belongs to a set B, और वो उनकी इंटरसेक्शन में भी ना हो. लेट अस सपोज बेटा जी दिस येलो एंड this line represent a set A and this is your set B. Then A minus B क्या होगा बेटा जी? This portion, this yellow portion is your A minus B. A के एलिमेंट होंगे बट कोई कॉमन ना तो एलिमेंट B का होगा ना ही इंटरसेक्शन का, तो ये हमारा क्या है? डिफरेंस A माइनस B. तो फॉर्मल डेफिनेशन क्या है इसकी? X किसको बिलोंग करेगा? A को, एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B. अगर वो B को बिलोंग नहीं करता तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ देयर इंटरसेक्शन. सो दिस इज द डेफिनेशन. दिस इज the definition of the difference of a two sets. So thank you students. Next we discuss the difference and the next set operation. Thank you.